Hello everyone, welcome to my channel once again Manoj Goyal Insight of Facility Management। आज मैं आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज लेके आया हूँ which is electrical safety measures। Yes, safety measures oblique precautions to mitigate the severe heat wave conditions at workplace। As you all know that we all are facing quite a severe heat in Delhi and NCR across and other northern regional states। So at this moment, they are severely affected, and the temperature has crossed over 48 degrees, across these cities. So I thought of, giving you some effective control measures or some strategy to control over this situation. Now, situation is bad. It's not that only electrical safety is required, but overall human safety is also required. Workman safety is also required. Workforce safety is also required, right? So we all have to collectively cope up your, fight back, with this severe heat conditions to enable us to perform our task effectively without having any issues. So the first point that I'm going to tell you is all firefighting equipment and fire extinguishers should be in place and are in working condition and not expired। देखिए इंपॉर्टेंट क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में सबसे पहले पॉइंट आता है फायर का। इन केस देयर इज अ फायर, देन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज जो आपके हाथ में आती है वो होती है फायर एक्सटिंग्विशर। तो you need to check today that whether your firefighting equipments and fire extinguishers should be in place, are in place, and they all are in working condition। चाहे आपकी वो फायर होज रील है, चाहे आपका वो फायर अलार्म सिस्टम है, चाहे आपका वो फायर एक्सटिंग्विशर है, चाहे मोशन सेंसर है, एनीथिंग, होज रील है, एनीथिंग which is pertaining to fire, which is termed to be as firefighting equipments should be in working condition। Only authorized personnel should handle the flammable chemical solvents and should be kept at isolated cool place। जो प्रोडक्शन हाउसेज है, फैक्ट्रीज है, वहां पे फ्लेमेबल केमिकल्स होते हैं, सॉल्वेंट्स होते हैं, ensure that they are kept at isolated cool place। In fact, I would urge the bank branches, the insurance branches, the NBFC branches, because generally they store some diesel for their diesel generator, I would request them to please store them in some isolated cool place। ऐसा ना हो आपने उसको इलेक्ट्रिकल पैनल के पास स्टोर किया हो और ये प्रॉब्लम बन जाए आपके, ठीक है। तो आज ही ध्यान दें और चेक करिए कि वेदर योर डीजल, योर एनी फ्लेमेबल सॉल्वेंट और लिक्विड should not be kept near the electrical panel। Nothing should be kept at staircase that is free from any obstacles। जनरली देखा गया है कि अगर हमारे पास 2 फ्लोर है ऑफिस के अंदर, तो हम लोग ग्राउंड से फर्स्ट जा रहे हैं तो रास्ते में हम लोग कुछ स्टेशनरी की कार्टन रख देते हैं, कभी कभी हम हाउस कीपिंग का सामान रख देते हैं, या और कोई फर्नीचर रख देते हैं। तो ऐसे मौके पे आपको अपनी स्टेयरकेस को हमेशा फ्री रखना है, उस पर कुछ भी नहीं होना चाहिए, ताकि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी पीपल शुड यूज द स्टेयरकेस and they should be able to evacuate it safely। Nobody should be allowed to work under direct exposure of sunlight। आप प्लीज इंश्योर करिए कि आपके जो वर्कर्स हैं, वर्कफोर्स है, वो तपती धूप में डायरेक्ट सनलाइट के अंदर काम ना करें। ऑल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट शुड बी स्विच्ड ऑफ एंड नॉट इन यूज। सिंपल है, आप नॉर्मल तौर पे भी इसको देखते हैं, बट इंश्योर करिए कि जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आपका यूज में नहीं आ रहा है वो बंद होना चाहिए, ठीक है। अगर वो स्विच ऑन होता है तो इलेक्ट्रिसिटी करंट पास होता रहता है इक्विपमेंट में। Impart safety training to all your workers, employees about various precautions to be taken in such conditions, especially covering head in direct exposure of sunlight। अपने वर्कर्स को, वर्कफोर्स को, एम्प्लॉयज को, स्टाफ को ट्रेनिंग दीजिए कि वो क्या क्या उनको प्रिकॉशंस लेनी है इन कंडीशन में काम करने के लिए, स्पेशली जब वो बाहर काम कर रहे हैं, ओपन में काम कर रहे हैं, तो उनको अपना सर ढका होना चाहिए, कैप से, हेलमेट से, जिससे भी। Avoid the peak hour shift of workforce, that is between 12 p.m. to 4 p.m. if at all manageable। I am saying if at all manageable। अगर आपको लगता है तो उनको ब्रेक शिफ्ट में काम कराइए अगर वो कर सकते हैं, बट उनको डायरेक्ट एक्सपोजर सनलाइट में काम नहीं कराइए,
या जो पीक टाइम होता है सनलाइट का 12 से 4 का, उसमें काम मत कराइए। रिपोर्ट प्रॉम्प्टली अबाउट एनी हीट रिलेटेड इलनेस टू द मेडिकल इमरजेंसी टीम और नियर बाय हॉस्पिटल। अगर कोई इश्यू आता है, अगर कोई इमरजेंसी आती है आपके ऑफिस में, जो हीट रिलेटेड इलनेस हुई है उसको, तो इमीडिएटली उसको मेडिकल रूम में ले जाएं या नियर बाय हॉस्पिटल ले जाएं। ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एल्स दिस कुड बी डेंजरस। All new electrical installations fitting should be executed by certified licensed electrical contractor only. हम बात करते हैं जनरली, जैसे ब्रांच में मैंने देखा है कि कभी कभी कोई प्रॉब्लम होती है, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होता है या कोई नया इक्विपमेंट आता है, हम लोकल किसी को बुला के इंस्टॉल करा लेते हैं। आपको ये इंश्योर करना है कि जो भी आप नई इंस्टॉलेशन करा रहे हैं, चाहे वो आप नया ऑफिस बना रहे हैं, फिट आउट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो जो कॉन्ट्रैक्टर आपका है, जो इलेक्ट्रिशियन से उसने डिप्यूट किया है उस काम को करने के लिए, ही शुड डिप्यूट any certified or licensed electrical workman for that job. ओके, या फिर आपका जो कॉन्ट्रैक्टर होना चाहिए वो भी सर्टिफाइड होना चाहिए, लाइसेंस्ड होना चाहिए कॉन्ट्रैक्टर, ताकि इलेक्ट्रिकल सेटअप में कोई प्रॉब्लम ना आए। गेट एन इलेक्ट्रिकल ऑडिट, heat load calculation done of your existing electrical setup to measure the MCB's wire ratings, accumulation of carbon, loose wires etc. from a licensed electrical contractor. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं ये कहना चाह रहा हूं यहाँ पे कि आपको अपने ऑफिस का इलेक्ट्रिकल ऑडिट कराना चाहिए। जो लोग करवा रहे हैं वो अपनी रिकमेंडेशंस पे ध्यान दें, और जो लोग नहीं करा रहे हैं वो प्लीज स्टार्ट कराएं। हीट लोड कैलकुलेशन कराएं, बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके ऑफिस का हीट लोड बढ़ता है, बट आपका इलेक्ट्रिकल सेटअप वही रहता है, जिससे प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अपनी एमसीवीज की, वायर की रेटिंग्स की, वो अंडररेटेड तो नहीं है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पहले आपका कनेक्टेड लोड था मान लो 15 किलोवाट का, अभी आपका कनेक्टेड लोड 25 किलोवाट हो गया है, बट आपकी वो वायर जो है उसी रेटिंग्स की हैं, एमसीबीज उसी रेटिंग की हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, आपके ऑफिस में एमसीबी ट्रिप होती है, इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हो, वो कहते हैं मैडम आपकी एमसीबी जो छोटी पड़ रही है ये 100 एम्पियर की है मान लो, इसको आपको 163 एम्पियर लगाना पड़ेगा। तो ऐसा होता है, बहुत होता है। You may also vouch for it, it has happened many times. It must have happened many times with you also in the past. ठीक है, तो this is very very important point. Please ensure this. अब कभी कभी क्या होता है कि कहाँ पे कट वायर्स होती हैं, चेक फॉर एनी जॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिकल वायर एंड रिप्लेस इट विद न्यू वायर एंड टू एंड बाय अ सर्टिफाइड इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। कभी कभी क्या होता है, जब इनिशियल सेटअप पे वायर की लेंथ छोटी पड़ती है तो हम उसको जॉइंट लगा देते हैं और काम चला लेते हैं। आप चेक करिए, अगर आपकी मेन केबल में जॉइंट है तो दैट इज वेरी वेरी एंड हाईली रिस्की, उसको आप चेंज कराइए। और वैसे भी जो आपकी मोटी केबल्स होती हैं ब्रांच में, ऑफिस में, अगर उनमें कहीं पे भी जॉइंट है तो उनको प्लीज रिप्लेस करा के एंड टू एंड नई केबल डलवाइए। In case of any fire, the electric supply needs to be immediately switched off. अगर आग लगने का कोई सिनेरियो है तो प्लीज सबसे पहले अपनी एमसीबी को डाउन, मेन एमसीबी को डाउन करिए, ताकि आपका फर्दर डैमेज रुक सके। ओके, दैट इज ऑल माय फ्रेंड्स। I thought of giving you some insight, some points on the today's scenario of heat wave severe, which is impacting the entire northern state. So please ensure, अगर आप ये सारे पॉइंट्स इंश्योर कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो प्लीज इंश्योर आप इनको फॉलो करिए, चेक करिए। और ये मेरी वीडियो अगर आपको लॉजिकल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स, अपने पियर्स, अपने कलीग से, कंपटीशन के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। ओके, आई विल ब्रिंग सच वीडियोज for you more and more in coming future. Till the time, bye bye, take care, have a safe working environment.